Assalamu alaikum everyone. The topic of discussion for today is the embryology of gastrointestinal system. Okay, so we will start from the most basic points that the gut is composed of three parts: the foregut, the midgut, and the hindgut. Foregut basically starts from the esophagus to the second part of duodenum at the level of ampulla of Vater. What is ampulla of Vater? It is the point where the common bile duct and the pancreatic duct, they are both opened into the duodenum, into the second part of duodenum basically. So till that point is the foregut, and from that point till the proximal 2/3 of transverse colon is the midgut, and from the distal 1/3 of the transverse colon to the anal canal above the pectinate line we have hindgut. So this is the way the gut is divided into three parts. Now the most important point during the development of foregut is that our stomach rotates along the angle of 90-degree clockwise during the 4th to 6th week of development. And during this rotation, what happens that the vagus nerve that was placed on the left side of the stomach becomes anteriorly positioned, and the right vagus nerve becomes posteriorly positioned. And the mnemonic to remember this is LARP, L-A-R-P. The left one becomes anterior and the right one becomes posterior. Okay. And in midgut, what happens? There is basically physiologic herniation of the midgut through the umbilical ring during the 6th week of development, okay, after the rotation of stomach. Now at the 6th week of development, what happens? The midgut herniates out through the umbilical ring, okay, and what happens after that? It returns back into the abdominal cavity during the 10th week of development. And when it returns back into the abdominal cavity, it basically rotates around the axis of superior mesenteric artery. Okay, so the rotation occurs basically in two parts. The first part involves 180-degree counterclockwise rotation that occurs before 10th week of development, and the next part involves 90-degree counterclockwise rotation in the 10th week. So there is a total of 270-degree counterclockwise rotation while the midgut is returning back into the abdominal cavity. Okay, now as it is very clear in the diagram that the foregut is supplied by the celiac trunk, and the midgut is supplied by superior mesenteric artery, and the hindgut is supplied by the inferior mesenteric artery. All of these three arteries are the branches of aorta. Okay, so aorta supplies the gut through three main branches. The branch that is known as celiac trunk supplies the foregut, the branch that is known as superior mesenteric artery supplies the midgut, and the branch that is called inferior mesenteric artery supplies the hindgut. Okay, so now we will study the ventral wall defects that occur during the embryologic development of the gut. Now, the most important ones are the gastroschisis and the omphalocele. Apart from them, there is another defect that is basically the sternal defect, the ventral wall closure defect. जो आपके rostral folds के closure हैं, उनके defect की वजह से एक जो important abnormality है जो होती है, that is called the ectopia cordis. As very clear from the name ectopia cordis, that the heart lies outside on the body. Okay, there is a defect in the sternum due to which the heart lies on the surface of the body, and it is called as ectopia cordis. These gastroschisis and omphalocele, these are basically due to the defect of lateral fold closure. Okay, the lateral fold closure defects are called gastroschisis and omphalocele. Now, as very clear from the word omphalocele, that the defect will be sealed. Okay, and in gastroschisis the defect will not be sealed. Okay, basically in both of these conditions there is herniation of the abdominal contents. In gastroschisis there is para-umbilical herniation of abdominal contents through a defect or through a gap. The word schisis means gap. Okay, the word schisis, the word gastroschisis, it's very clear from the word itself that there is a gap in the abdominal wall or a defect in the abdominal wall through which the abdominal contents are herniated out, and this is basically the para-umbilical herniation. Okay, and there is no seal, there is no covering. The gut lies outside the abdominal cavity without any covering. It is not covered by any skin or peritoneum or amnion. Okay, and in omphalocele what happens? The abdominal contents are herniated out through the umbilicus. Exactly at the point of umbilicus the herniation occurs, and it is covered by peritoneum or amnion. Omphalocele, the seal means sealed, that is the contents are sealed by peritoneum or amnion. Basically it appears as a shiny sac, a light gray shiny sac, and the contents are sealed.
Okay, and the gastroschisis is basically associated with the chromosomal abnormality as it has good prognosis. ठीक है. The omphalocele on the other hand is associated with congenital abnormalities. The trisomy 13 and the trisomy 18. The trisomy 13 that is called Edwards syndrome and the trisomy 18 that is called Down syndrome. Apart from that, there are certain structural abnormalities that are associated with omphalocele. These are called cardiac, genitourinary or neural tube defects are mostly associated with omphalocele. While the gastroschisis is associated with chromosomal abnormalities and has a good prognosis. Another condition is called congenital umbilical hernia. It is just like other types of hernias and it is covered by the skin and involves the failure of umbilical ring to close after physiologic herniation of midgut. The herniation of midgut that occurs during the 6th week of development, and then there is going back of the abdominal contents into the abdominal cavity. There is failure of the umbilical ring to close after the physiologic herniation and it leads to the development of congenital umbilical hernia, and it is covered obviously by skin. और इस तरह से होता है कि when the baby cries the contents come out, because when the baby cries there is increase in intra-abdominal pressure and this increase in intra-abdominal pressure causes the contents to protrude out. It is associated with Down syndrome and with congenital hypothyroidism. These are the most important conditions that involve congenital umbilical hernia, the Down syndrome and the congenital hypothyroidism. The next point of discussion is tracheoesophageal fistula. What is fistula? Fistula is basically an abnormal connection between two epithelium. So when this abnormal connection occurs between esophagus and trachea, it is called tracheoesophageal fistula or TEF. Another condition is called esophageal atresia. What does atresia means? Atresia means narrowing. As we all know, esophagus is a canal. It's like a pipe or a tube that has a uniform diameter. So when the diameter is reduced at some point or when there is a narrowing of this tube at some point, it is called esophageal atresia. Okay, and there are certain conditions in which there is esophageal atresia as well as tracheoesophageal fistula. Yani proximally there is a narrowing of the esophagus and distally there is an abnormal connection between the esophagus and the trachea. Okay, so the most common presentation is basically esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. About 85% of the cases में ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं. और इस तरह से प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जब ऑब्वियसली ईसोफेगस की नैरोइंग होगी तो जो फीटस होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर पाएगा, और जब वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोलीहाइड्रेमनियोस हो जाएगा इन यूट्रो. लाइक इन प्रेगनेंसी द प्रेजेंटेशन वुड बी पोलीहाइड्रेमनियोस. जब भी पोलीहाइड्रेमनियोस होता है तो हमें दो चीज़ें सबसे पहले माइंड में आती हैं. एक तो ये कि मदर डायबिटिक हो सकती है, दूसरा ये कि जो बेबी है उसके अंदर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है जिसकी वजह से वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर पा रहा और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है. ओके और आफ्टर बर्थ क्या प्रेजेंटेशन होती है कि आफ्टर बर्थ जो बेबीज़ हैं वो फीडिंग के बाद ड्रूल करते हैं. उनका जो आप उन्हें फीड कराते हैं तो उसके बाद वो ड्रूलिंग हो रही होती है या चोक कर जाते हैं वो फीडिंग के बाद या वॉमिट कर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट फीड के बाद. ओके इसके अलावा क्या होता है कि जब फिस्टुला बना होता है ना तो ट्रेकिया से सारी एयर निकल के जो है वो स्टमक के अंदर जा रही होती है, और स्टमक के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट सा एयर बबल नज़र आता है एक्सरे के ऊपर. ठीक है, तो जब प्रोमिनेंट एयर बबल एक्सरे के ऊपर नज़र आए तो वो पता चल जाता है कि ये कोई ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है. नॉर्मली भी एक्सरे पे एक बबल होता है लेकिन वो एक छोटा बबल होता है, जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक बबल एक नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल है. ओके और ये एक छोटा बबल है. बट जब आपके पास यहाँ पे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोमिनेंट किस्म का गैस्ट्रिक बबल होता है. और अगर स्टमक में बिल्कुल ही कोई गैस नहीं है, कोई बबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्योर ईसोफेजियल एट्रीजिया है कि ईसोफेगस से कोई गैस आ ही नहीं पा रही स्टमक के अंदर. तो इसका मतलब है कि स्टमक के अंदर कोई गैस है ही नहीं, वो प्योर ईसोफेजियल एट्रीजिया होता है, मतलब के साथ कोई फिस्टुला नहीं है. और अगर साथ फिस्टुला है तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रोमिनेंट किस्म का प्रोमिनेंट किस्म का गैस्ट्रिक बबल होता है. ओके और गैसलेस एब्डोमेन या गैसलेस स्टमक जो होता है वो होता है प्योर ईसोफेजियल एट्रीजिया के अंदर. अब इसमें एक कहते होते हैं कि एच टाइप फिस्टुला होता है, उसमें ये होता है कि जो ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला होता है कोई एट्रीजिया नहीं होता, और एक होता है ईसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, वो सबसे कॉमन है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं. उसके बाद है इंटेस्टिनल एट्रीजिया. अब जो इंटेस्टिनल एट्रीजिया है ना वो बिलियस वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा. जब भी बिलियस वॉमिटिंग होगी नियोनेट्स के अंदर तो इसका मतलब है कि जो डिफेक्ट है वो इंटेस्टाइन के अंदर है, और जब नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी उसका मतलब है कि जो डिफेक्ट है वो ईसोफेगस में है या वो स्टमक के अंदर है.
अच्छा जी, अब जो इंटेस्टिनल एट्रीजिया है वो बिलियस वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट करता है विद इन द फर्स्ट 2 days ऑफ लाइफ। ओके, अब इसमें जो डुओडेनल एट्रीजिया है ना, उसमें याद रखने का डी से ही सारा होता है कि एक तो डुओडेनल एट्रीजिया है तो डबल बबल होगा स्टमक के अंदर, यानी कि डायलेटेड स्टमक होगा, और प्रॉक्सिमल डुओडेनम भी डायलेटेड होगी, क्योंकि डुओडेनम के अंदर एट्रीजिया है ना, तो स्टमक में भी गैस भरी हुई होगी, डुओडेनम में भी गैस भरी हुई होगी, और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है मोस्ट कॉमनली। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और जीजुनल और आइलियल एट्रीजिया में क्या होता है कि ट्रिपल बबल होगा, ऑब्वियसली स्टमक भी डायलेटेड है, डुओडेनम भी डायलेटेड है, और प्रॉक्सिमल जीजुनम भी डायलेटेड है, और जो कोलन है उसमें कोई गैस है ही नहीं। ओके, और इसमें ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ना, उसकी डिस्ट्रप्शन होती है, जिसकी वजह से इस्कीमिक निक्रोसिस हो जाती है फीटल इंटेस्टाइन की। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी, मिड बली गट को सप्लाई कर रही थी, तो उसकी जब इस्कीमिक निक्रोसिस हो जाएगी तो क्या होगा कि जो उस सेगमेंट की, जिस सेगमेंट की निक्रोसिस हुई है वो सेगमेंट उसकी रिजॉर्प्शन हो जाएगी, और बाउल जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, और एक्सरे के ऊपर आपके ट्रिपल बबल साइन आ जाएगा। अब ये जो जीजनल और आइलियल एट्रीजिया है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड है और गैस्ट्रोस्काइसिस के साथ एसोसिएटेड है। टोबैको स्मोकिंग से भी हो सकता है, और कोकेन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से हो सकता है, जो कि वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग्स हैं, लाइक आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिक निक्रोसिस होती है, सेगमेंटल रिजॉर्प्शन हो जाती है, बाउल डिसकंटिन्यूस हो जाती है। ओके, जबकि जो डुओडेनल एट्रीजिया है वो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद एक कंडीशन है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से। अब हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है कि सेल साइज में इंक्रीज कर रहे हैं। पाइलोरिस क्या होता है कि जो स्टमक का डिस्टल एंड है उसे कहते हैं पाइलोरिस, और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो स्टमक का डिस्टल एंड है उसकी नैरोइंग हो जाएगी और थिकनिंग हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी मीन्स थिकनिंग एंड स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग। अब ये जो कंडीशन है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे थिकनिंग हुई है, तो जब आप एब्डोमेन को पल्पेट करेंगे तो एपिगैस्ट्रियम में आपको एक ऑलिव शेप्ड मैस नज़र आएगा। ओके, ऑलिव शेप्ड मैस नज़र आएगा एपिगैस्ट्रियम के अंदर। और इसमें जो वॉमिटिंग होगी वो किस किस्म की होगी, नॉन बिलियस होगी, नॉन बिलियस और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, और ये 2 to 6 वीक्स के अंदर होगी। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और मैक्रोलाइट के एक्सपोजर की वजह से होता है। ओके, और इससे होता क्या है कि जब वॉमिटिंग होगी तो स्टमक का एसिड भी ऑब्वियसली वॉमिटिंग में बाहर जाएगा ना, तो जब एसिड बॉडी से बाहर चला गया तो पीछे क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा। और एसिड कौन सा बाहर गया है, स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब क्लोराइड बॉडी से बाहर चला गया तो पीछे क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। और जब सारा वॉमिटिंग बाहर गया, सारा का सारा वॉमिटिंग में ऑब्वियसली आपका जो फ्लूइड होता है वो भी बाहर जा रहा होता है, तो पीछे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाइपोकलीमिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्ट्रासाउंड पे थिकेंड और लेंथेंड पाइलोरस नज़र आएगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना होता है, आपने सर्जरी करनी होती है। पाइलोरस के जो मसल्स थिकन हुए हैं उनमें आपने एक इंसीजन देना होता है, जिसे कहते हैं पाइलोरोमायोटॉमी, कि पाइलोरस के मसल्स में आपने इंसीजन दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, हो गया सर्जिकल इंसीजन ऑफ पाइलोरिक मसल, जिसका ट्रीटमेंट हो गया। अब हमने पढ़ना है पेंक्रियास और स्प्लीन के बारे में। जो पेंक्रियास है वो आपका फोरगेट से डिराइव हुआ है, और जो स्प्लीन है वो स्टमक की मेजेंट्री से डिराइव हुई है। अब जो पेंक्रियास है वो बेसिकली उसकी डेवलपमेंट में एक वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड होता है और एक डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड होता है। दोनों फ्यूज़ करके मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं और पेंक्रियाटिक हेड बनाते हैं, और जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड है वो अनसीनेट प्रोसेस बनाता है। ओके, अब इसकी डेवलपमेंटल एनॉमलीज में 2 मोस्ट कॉमन है। एक है एन्यूलर पेंक्रियास। एन्यूलर पेंक्रियास में क्या होगा कि जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड है ना उसकी एब नॉर्मल रोटेशन होगी, और वो नॉर्मल पेंक्रियाटिक टिश्यू के अराउंड एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड है वो एक रिंग बना देगा पेंक्रियाटिक टिश्यू का, और वो क्या करेगा, सेकेंड पार्ट ऑफ डूडेनम को इंसर्कल कर लेगा और डूडेनम की नैरोइंग हो जाएगी। जब डूडेनम की नैरोइंग हो जाएगी तो वही एक बात होगी डूडेनल एट्रीजिया की तरह से ही, और वॉमिटिंग होगी। ओके, यानी कि एन्युलर पेंक्रियास ने जो सेकंड पार्ट ऑफ डूडेनम था उसको इंसर्कल कर लिया और एक रिंग बना लिया उसके अराउंड, जिसकी वजह से डूडेनम की नैरोइंग होगी। ऑब्वियसली जब एक ट्यूब के अराउंड आप टाइट ग्रिप हो जाएगी तो वो ट्यूब जो है वो अंदर से नैरो हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो आगे से कॉन्टेंट्स जो हैं वो आगे पास नहीं हो सकेंगे, और वहाँ पे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी उस बेबी के अंदर। ये भी डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। जो डूडेनम का एट्रीजिया है वो भी डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो एन्युलर पेंक्रियास है ये भी डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इसने भी डूडेनम के सेकंड पार्ट को इंसर्कल किया हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ है पेंक्रियास डिवाइजम। पेंक्रियास डिवाइजम क्या होता है कि जो वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट है पेंक्रियास का, जिसने 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में फ्यूज़ होना था वो फ्यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से पेंक्रियाटिक डिवाइजम हो गया है। और इसकी वजह से होता क्या है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है, वही जो पेंक्रियाटाइटिस की प्रेजेंटेशन है।
अब स्प्लीन का क्या है कि जो स्प्लीन है वो भी स्टमक की मेजेंट्री से अराइज होती है ऑब्वियसली, और जब स्टमक की मेजेंट्री से अराइज होगी तो इसकी ब्लड सप्लाई भी वही वाली होगी जो स्टमक के एरिया को है। तो स्टमक एरिया को कौन सी ब्लड सप्लाई है, सीलिएक आर्टरी से है। तो सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच होती है स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन को सप्लाई कर रही होती है। Okay guys, so this is all for today. In the next video we will discuss the anatomy of gastrointestinal system.